Last person. As he said rightly, see, today I will be talking about the fostering scientific temper. Now this particular word, as it is in English, I have just tried to translate it into the Marathi. That is Vikas Vaidyanik Drishtikonatha. Okay, I understand that it's a mixed population. Understand Hindi and Marathi and Gujarati well. I can speak basically in Marathi and Hindi. So I'll speak specifically in Hindi, Marathi, English, so that you can understand this topic well. Okay, today's topic is fostering scientific temper. Why this topic has been chosen, and some already 2 lectures have been given to you. Okay, so now really speaking, after listening to sir and previous to that few introductions by your student friends only, I understand that really speaking you need to understand the scientific temper in a more detail, and that is why today's lecture has been defined. So let's start with today's lecture. Before that, before getting into this part, I had some questions for you, and before that I just want to get those answers from you. So आप ऑपरेट करेंगे, नेक्स्ट करते रहिए, नेक्स्ट. So these are the questions which already something has been answered and some things are still missing. Just wanted to know when and why National Science Day is celebrated. Any one of you volunteer can come fast, answer the questions. We have sufficient time for the 1 hour and 30 minutes. So we will be discussing those all parts. But just wanted to know when we celebrate National Science Day. 28th February each year. Then why we are celebrating this lecture today? But why we have given this lecture today? Because when we celebrate National Science Day on 28th February, the whole activity cannot be covered in a one day. So normally Science Week or Science Year is celebrated. Okay, and that's what that particular word, fostering scientific temper, is the theme of this year's National Science Day. Okay, जो National Science Day की जो various activity है science communication की, उसका जो थर्स्ट रहेगा इस साल रहेगा fostering scientific temper. And for that we need to understand. I hope I am going okay now. You understand each and every word? Okay, that's great. Then now coming to why National Science Day is celebrated. Already told to you. Okay, so just let me know why National Science Day is celebrated. Foster scientific temper. Okay, that is the intent. What is the background music behind celebrating National Science Day on 28th February? Inculcation of scientific activity. That's fine. Those are intent and objective. You can see there must be some fourth line which says what is the intent objective of National Science Day. I just wanted to know why 28th February has been chosen as a National Science Day. What historic moment India or world has experienced from the scientific achievement? Yes. So tell me. No need to stand up. Just tell me what is it. Okay. इसके लिए. What is Raman effect? Scattering of light related to spectrum. Okay, quite well. Okay, see, it's very simple as we say, na? What is Raman effect? That's the next question. So she has answered it. But for common man, suppose some student from the 8th or 9th standard comes, as you happen to be teacher in his school, and he asks, Madam, can you explain me what is Raman effect, which can be well understood by the student who is of the 8th, 9th, 10th age, or common man who is not anyway connected to the science and technology as such. What will be the answer? Now just let me know. You know sky is blue. Why sky is blue? Okay, whatever she said, scattering of light. Okay, why particularly see? अगर आप गोवा गए हो, अंडमान निकोबार आइलैंड्स वगैरह विजिट किया आपने, टीवी पे देखा होगा डिस्कवरी. तो लेडीज सीरियल के अलावा कुछ देखते हो ना आप लोग? अच्छा, तो ठीक है. तो लेडीज सीरियल के अलावा जो डिस्कवरी चैनल वगैरह या नेशनल जियोग्राफी देखते हैं, उन्होंने समुद्र भी देखा होगा कि काफी साफ सुथरा, मतलब अपना ये जो जुहू वाला बर्ली वाला उससे ऐसा नहीं रहता है काला नीला पीला. ओके, काफी साफ सुथरा. उसको जो समुद्र का रंग है वो गहरा नीला बोलते हैं. तो कैन यू टेल कि अगर आप वो समुद्र का पानी आपके हाथ में लोगे तो क्या वो गहरा नीला दिखेगा? इट विल बी कलरलेस. तो जो गहरा नीला रंग समुद्र का दिखता है वो क्यों दिखता है? बेसिकली दिस रीजन, और इसके पीछे जो रीजन है, ये कंसेप्ट है, ये एक्सप्लेन करने का काम स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल सीवी रमन जी ने बताया वो बताता है. जैसे कि सिंपल चीज है, कोई भी लाइट बीम, लाइट रेडिएशन किसी भी पदार्थ के कण पे यानी मॉलिक्यूल के ऊपर गिरता है तो उसकी तरंग की लंबाई में बदलाव आता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टेटमेंट आपको याद रखना चाहिए. व्हाट इज Raman effect? Okay, you can tell in the practical lively example in our life what we see is the Raman spectrometry, which is the scientific angle of it. But if you tell कि what is the normally commonly observed phenomena, then sky is blue, the sea is little deep blue. So those colors are obtained because of the Raman effect, which tells that whenever any light beam
interact or it is deflected by any molecule, there is change in its wavelength. और ये वेवलेंथ में जो चेंज हो गया, ये वेवलेंथ में हुआ बदलाव जो है वो पदार्थ के कण के प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंडेंट है। और इसी चीज के कारण हमको उसके बहुत सारे साइंटिफिक एप्लीकेशन मिलते हैं। आप लास्ट टाइम का लेक्चर बहुत एंजॉय किया रहेगा, बहुत ज्यादा। इस बार बिल्कुल बोर नहीं होना, क्योंकि क्या है ना, दिस विल बी टॉकिंग बिट ऑन डिफरेंट टर्म्स, विल बी टॉकिंग अबाउट द बिट साइंटिफिक थिंग, क्योंकि हम साइंटिफिक टेम्पर की बात कर रहे हैं, वो एक सोच के बारे में, वो सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, बट ये आया भी उन्हीं लोगों के कारण है जो साइंटिफिक सोच रखते हैं, जो समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं उस तरीके से कि जो सोच से शुरू होता है। तो अगर मैं बोलूंगा कि रामन इफेक्ट इस तरीके से बताया जा सकता है, तो आगे एक स्टेटमेंट है, देखो जो मैंने आपको बोला था, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ रामन इफेक्ट। योर फ्रेंड हैज राइटली टोल्ड रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज द रियली ट्रू एप्लीकेशन ऑफ द रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे आपको मालूम है कि आप एयरपोर्ट वगैरह जाओगे तो बहुत सारे स्कैनर्स रहते हैं, नॉर्मली एक्सरे स्कैनर रहता है, वो क्या देखता है कि अगर कोई मेटल की चीज लेके जा रहा है, क्या कोई सपोज धातु के औजार या फिर उस तरीके का हथियार वगैरह लेके जा रहा है, नॉर्मली मेटल डिटेक्टर से भी आपका मतलब इंडिविजुअल का चेकिंग होता है, रब ऑफ बोलते हैं उसको। तो इस तरीके से सिंपल चीजें हैं, जैसे एक रमन स्कैनर नाम की चीज है, जो इसी आविष्कार का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो ये आविष्कार का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, आज उसके ऊपर $1 बिलियन की इंडस्ट्री खड़ी है। 2013 जो साल है, इस 2013 साल को अमेरिकन केमिकल सोसाइटी द्वारा एक रमन इफेक्ट को हिस्टोरिकल लैंडमार्क के तौर पे घोषित किया गया। वाई? क्योंकि ये जो 1928 में बताया गया, उसका आज प्रैक्टिकल फॉर्म यानी एप्लीकेशन इस दौर में पहुंच चुका है कि $1 बिलियन की साइंटिफिक इंडस्ट्री उस पे चलती है। सिंपल एग्जांपल है कि मेरे हाथ में जो माइक है, उस साइज का एक रमन स्कैनर अगर आपके बॉडी के ऊपर या आपके सामान के ऊपर या कोई भी राह चलती आदमी, सपोज बीटी में कोई आदमी खड़ा है, जस्ट ही इज स्कैनिंग फॉर द इंडिविजुअल बैगेज, ही कैन चेक फॉर द ड्रग्स, he can check for the हथियार, he can check for the anything related to the material। ऐसे क्यों हो पाया? क्योंकि जो मैंने इनिशियल प्रिंसिपल में आपको बताया कि जो डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, उसके तरंग की लंबाई में यानी वेवलेंथ में जो बदलाव आ रहा है, जो उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज बताता है, इस चीज से आप हर चीज को चेक कर सकते हैं, उसकी एक सिग्नेचर अटेन कर सकते हैं। जैसे मालूम है आपका जो फिंगरप्रिंट्स है वो यूनिक है, योर फिंगरप्रिंट्स आर यूनिक। आप टीचर हो, यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दिस। एवरी टाइम आई विल नॉट कम एंड क्रैक सम जोक्स एंड यू विल एंजॉय एंड से कि सर ने बहुत अच्छा बोला। आपको कुछ टेक्निकल चीजें भी समझनी होंगी। ये मैं इतनी बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भविष्य में यही सवाल आपको पूछे जाएंगे। सी नेशनल साइंस डे पे आप सब प्रेजेंट रहोगे, सम स्टूडेंट विल आस्क यू सम क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू दिस। तो अगर मैं बोलूंगा कि यूनिवर्स के हर चीज की एक फिंगरप्रिंट या एक यूनिक सिग्नेचर रमन इफेक्ट के जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रमन स्कैनर है वो जनरेट कर सकता है, तो आगे जाके एक हैंडहेल्ड रमन स्कैनर से आप यूनिवर्स की कोई भी चीजें खड़े खड़े आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे मैं इंडस्ट्री में काम करता हूँ, जैसे बीआरसी में, तो हम मटेरियल आइडेंटिफिकेशन डिटेक्शन के लिए बहुत सारी तरीके की टेक्निक्स है, और उसमें से जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेथड लेजर से जिसमें इंक्लूजन है वो देखते हैं, तो लिटरली 2 मिनट में रिजल्ट्स आ जाते हैं। एक मटेरियल मेरे सामने है, मैंने उसको रखा, उसके ऊपर प्रोब से उसने लेजर छोड़ा, उसके वेपर हो गया और उसको मैंने स्कैन किया, एंड इन 1 मिनट आई गेट द रिजल्ट, कंप्लीट कंपोजिशन ऑफ दैट थिंग, जो अलॉयज वगैरह होते हैं, जो जिसकी वो बात कर रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आई जस्ट पुश फॉरवर्ड एंड लेट यू नो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ रमन इफेक्ट। विल गो फर्दर नेक्स्ट। सी, these are for you to see. The applications are mentioned here. Techniques which can generate fingerprint of universe. Raman spectroscopy is for material analysis. Raman scanner to diagnose the disease cell organs, detect explosive, detect the steroids, NDEs, NDE मतलब non destructive testing, और बाकी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें। आपको मालूम है ऑपरेशन में वगैरह जो एनेस्थीसिया के लिए गैस देते हैं, वो एनेस्थीसिया का गैस भी एनालाइज करके रमन स्कैनर से आएगा, तो डिटेक्शन विल बी वेरी ट्रू एंड एक्यूरेट। तो ये सारे एप्लीकेशन सिर्फ एक प्रिंसिपल जिसका इन्वेंशन सीवी रमन जी ने 1928 में किया, उनके पास कोई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो यूरोप में नहीं बैठे थे, वो इंडिया में आ चुके थे, और इंडिया में बैठ के उन्होंने किया। इतना बहुत ही अहम संशोधन था ये कि उन्होंने 2 साल में इमीडिएटली उनको नोबेल प्राइज मिला। यू नो, नोबेल प्राइज मिलना बड़ी बात नहीं है, बट जिस आदमी को मिला था उस आदमी को 1930 में उसके देश का एक झंडा भी नहीं था, बिकॉज वी वर नॉट इंडिपेंडेंट। इसके अलावा एक अहम चीज ये थी, क्या हो रहा है उधर पीछे? हेलो, क्या कुछ स्पेशल? तो बाहर जाओ, यू डोंट टॉक अमंग यूरसेल्फ। मैं यहाँ फिर से नहीं आऊंगा, आपको दूसरे से बात करने गेट लॉस्ट।
दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। मैं ये बोल रहा हूँ वो एक एक मैं छुट्टी डाल के आया हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, जिसको समझता है खड़े होकर मुझे एक्सप्लेन करो व्हाट इज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप गधे जैसे बिहेव मत करो, यू आर गोइंग टू बी टीचर। मैं यहाँ इसलिए नहीं आता हूँ कि तुम बहुत सारे लोग हो यहाँ पे, सर और मैडम बुलाते हैं इसलिए आता हूँ। सुनने में इंटरेस्ट नहीं है तो जस्ट रेज योर हैंड, आई विल गेट लॉस्ट। आई डोंट टॉलरेट इडियोटिक बिहेवियर्स। लास्ट वार्निंग, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता आप कौन और क्या हो, लिंक मत तोड़ो। अगर कोई बोल रहा है, स्पीकर के लिए बहुत जरूरी है कि उसका जो श्रोता वर्ग यहाँ बैठा है वो भी सुने। So we were talking about the रमन, सीवी रमन। सीवी रमन ने जब 1930 में नोबेल प्राइज पाया तो एशिया के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको साइंस में मिला था नोबेल प्राइज। वो पहले ऐसे पूरे दुनिया के काले व्यक्ति थे जिसको साइंस के लिए नोबेल प्राइज मिला था। अभी यहाँ इतने लोग बैठे हो, बच्चे लोग जब आगे जाके पूछेंगे कि इक्लिप्स के दिन और जो नॉर्मली प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी ये जो फेजेस है, इनमें एग्जैक्टली मून के साथ क्या व्यवहार होता है और एग्जैक्टली इन दोनों में फर्क क्या है, तो 99% ऑफ यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन, हैपनिंग टू बी फ्रॉम द साइंस स्ट्रीम, क्योंकि सुनने की आदत नहीं है। या एक लेडीज सीरियल लगा दो तो ऐसे खड़े खड़े 3 घंटा रोओगे। ऐसे जो तुम लोगों में नमूने और वीडियोटिक है ना, उनसे आज हमारा समाज भरा हुआ है। थोड़ा नॉर्मल होके जियो। एज ए इंडिविजुअल यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं उसमें इतनी डाइवर्सिटी है कि आई नीड टू कम एंड डिलीवर लेक्चर ऑन साइंटिफिक टेम्परामेंट व्हेन यू आर ऑलरेडी क्रॉस्ड योर ग्रेजुएशन। 15 साल की आपने शिक्षा दी है एक अच्छे टीचर्स के हाथों, फिर भी आपको अभी तक बोलूंगा 10 मिनट खड़े होकर साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर बात करो तो यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन। So we were talking about the what is exactly Raman if we get into application. So we'll go further. This will be ये खत्म हो जाएगा। अभी जैसे कुछ बोल रहे थे कि इनकलकेट साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक एक्टिविटी को प्रमोट करना, जो क्यूरियोसिटी यंगर जनरेशन में एज वेल एज दी जो आपके जैसे एल्डरली मतलब जस्ट एज में आए थे, उनकी ये सारी जो क्यूरियोसिटी है उस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको एक शोकेस देने के लिए एक्चुअली नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। दैट इज व्हाट रिटन देयर। ये सारी एक्टिविटी इसी चीज के लिए है कि लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो आए। अब उसी में लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज लिखिए, देखो, द ऑब्जेक्टिव इज टू मेक एवरी सिटीजन डेवलप द एप्टीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग एंड रीजनिंग। दैट्स द इंटेंट ऑफ दिस ईयर साइंटिफिक साइंस डे आल्सो और साइंस ईयर आल्सो। सो वी गो फर्दर, दीज आर द थीम्स। अभी ये मैं सिर्फ रामायण सारा क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं फोस्टरिंग साइंटिफिक टेम्पर की, जो हमारे इस साल की थीम है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1989 में एक फोरम था, उन्होंने डिसाइड किया कि एवरी ईयर वी विल स्टार्ट सेलिब्रेटिंग नेशनल साइंस डे। एंड एज यू अंडरस्टैंड, हम सुबह से लेके शाम तक और पैदा होने से लेके मरने तक सिर्फ और सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। फिर भी कहीं भी कभी भी कुछ भी तकलीफ हो जाए तो मत्था टेकने हम लोग हमारे धर्मस्थल पे पहुंच जाते हैं, फिर कोई मस्जिद में पहुंच जाता है, कोई चर्च में पहुंच जाता है, कोई मंदिर में पहुंच जाता है, कहीं किसी बुआ बाबा के पास पहुंच जाता है। There is no scientific connection of all these things with any of the scientific happening which can be explained by the repeatable proof. फिर भी हम वहां जाते हैं। ऐसे में अगर मैं बोलूंगा कि मैं सारे साइंस एंड एप्लीकेशन जो है वो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम द्वारा सारे समाज तक, समाज मतलब कौन, मैं सिर्फ 121 करोड़ भारतीयों की बात नहीं कर रहा हूँ। I am talking about the approximately 7.5 billion या approximately 750-800 करोड़ दुनिया की जो आबादी है उन तक मैं पहुंचना चाहता हूं। तो प्रोबेबली मैं बहुत सारी चीजें करते जाऊंगा तो हो जाएगा ये कि एक्चुअली मास्टर ऑफ नन एंड जैक ऑफ ऑल और जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। So each year they have kept one topic and this has started somewhere around 99 and you can see, you can read out 99 में our changing earth नाम का टॉपिक एड्रेस किया गया, 2000 में रीक्रिएटिंग द इंटरेस्ट इन बेसिक साइंसेस, 2001 में भी। अगर मैं इंडिविजुअल पे भी बोलना बात करूँ ना तो आप समझ सकते हैं 99 में हम लोग देखते हैं कि आप कभी भी किसी को भी जो नॉर्मली जिसको चिढ़ है साइंस से, ऐसे नॉर्मली लोग वो रहते हैं, एक तो वो आध्यात्मिक है या दूसरी तरीके से फेनेटिक है, या फिर और एक छोटा है कि सोशल एक्टिविस्ट है, जिन्होंने ये देखा कि नेचर पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भरमार इस्तेमाल से बहुत ज्यादा डिवास्टिंग इफेक्ट हो रहा है। तो नॉर्मली दे विल अपोज साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सम विल क्रॉस द लिमिट एंड से कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा इंसानियत का दुश्मन है, इंसान और इंसानी सभ्यता का। तो ऐसे लोगों को ये समझने के लिए कि भाई जो अर्थ है उसके जो कंडीशन चेंज होते रहते हैं, इसके ऊपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण जो एप्लीकेशन आए उसका तो इफेक्ट है ही, बट इसके अलावा
जो रिचुअलिस्टिक भी है पार्ट है। अभी मालूम है आपको, हाल ही में होली पूर्णिमा हो गई। आप सब जहां से भी आते हैं, हर गली कूचे मैदान में एटलीस्ट एक तो होलिका का दहन हुआ होगा। अभी होली अभी हाँ एक नहीं, कोई डिसएग्री करे, बोले एक नहीं 5 होते हैं। ओके, तो आप 10 भी होते हैं। चलो हाँ, तो आगे जाके हम ये बोल सकते हैं, आज अब आए होंगे 8-10 दिन पहले बम्बई में अच्छी ठंडी चल रही थी, ओके क्लाइमेट था, सडनली देयर इज चेंज। अभी ऐसे में सोचो आपका घर वो कोने के बगल में है जहां पे होली का अभी भी दहन चल रहा है, क्योंकि वो महीना पर चलना चाहिए, ऐसा कुछ फंडामेंटल है। तो आपकी तो हवा बुलूती रहेगी। गलती से एसी नहीं है घर में तो आपका आप महीने भर में तंदूरी बन जाएगा। ओके, अनऑफिशियल तंदूरी से जरूर बनेगा। ऐसे में मुझे बोलो कि ऐसे रिचुअल्स की आज जरूरत है क्या? अगर साइंटिफिकली आप बोलोगे तो 100% नहीं है। अगर रिचुअली बोलोगे तो यू विल गिव मी 10 एक्सप्लेनेशन which according to you will be 100% लॉजिकल, क्योंकि आपका लॉजिक जो है वो स्यूडो साइंस के ऊपर बेस्ड है। तो ये जो स्यूडो साइंस है, एक्चुअल साइंस है, इसको अगर हम एक सोच के नजरिए से देखें तो इमीडिएटली आपको दूध का दूध और पानी का पानी महसूस होगा। और ये सोच क्या है ये बताने का एक माध्यम है, या ये सोच जो है वो है साइंटिफिक टेम्पर। और इस साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देना ये इस साल का थीम है। बट आगे की थीम्स आप देखो, जैसे कि आप सोचते होंगे नॉर्मली ना आजकल सब लोग आप बोर हो रहे क्या? नो। क्या होगा, 1.5 घंटा ऐसे इसी स्पीड में बोलता रहूंगा। जब भी बोर हो जाओगे ना तो ऐसा टाइम सब कर देना बच्चे, तो आप कर दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बट मुझे वो आदत है इसी तरीके से, जो अंदर आ रहा है दिमाग में वो बोलते रहता हूँ। जस्ट सी रीगेटिंग इंटरेस्ट इन बेसिक साइंस। आप सब जानते हैं पुराने जमाने के मतलब 400 साल पहले जितने भी रिसर्च हुए वो सारे रिसर्च मतलब किसी लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब द्वारा नहीं हुए थे। नॉर्मली एक सोच थी, एक प्रतिभा थी जिसको लॉजिक के साथ जोड़ा गया। जैसे मैं नॉर्मली आइजैक न्यूटन की बात करता हूँ, तो आइजैक न्यूटन जिन्होंने सच्चे मायने में एक साइंटिफिक एरा लाया, अभी भी उनको बहुत ही इज्जत से देखा जाता है और देखा जाएगा सदियों तक। उनका जो बेसिक जिससे वो बहुत पॉपुलर हुए वो सिंपल चीज थी कि हर चीज जब हम आसमान में उड़ाते हो तो नीचे क्यों आता है।